ٹنڈا کالونی۔ آئیے حضرات محترم حضرت استقبال وعلیکم خیر مقدم سواگت نعرے تکبیر اور نعرے سعادت کی صدا میں کرے پورا مجمع محبتوں کے ساتھ نعرے کا جواب دے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء نماز عصر کے بعد اپنے ممبر شریف سے جب تشریف حجرے پاک میں لے جا رہے تھے، غور سے سنیں، اگر آپ نے سنا ہو تب بھی سنیں، نہ سنا ہو تو سبحان اللہ بولیے گا۔ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات اپنے حجرے پاک کی طرف کو تشریف لے جا رہے تھے، میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ اندازہ لگایا کہ سرکار خرامہ خرامہ قدموں سے حجرے پاک کی طرف جب تشریف لے جانے لگے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، سرکار مسکرا رہے تھے۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو سرکار کا چہرہ 14ویں رات سے زیادہ درخشاں چہرے پہ جب مسکراہٹ کے آثار دیکھے تو مجھے سرکار کی وہ بات یاد آئی، فرمایا تھا کہ اے عائشہ جب مجھے تو کبھی خوشی کے عالم میں دیکھے تو مجھ سے جو چاہے مانگ لینا۔ فرماتی میں آگے بڑھی تو میں نے سرکار کا دامن پکڑ لیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ میں خوش ہوں، کیا ہوا بتائیے؟ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ جب مجھے خوش دیکھے تو اپنے لیے جو چاہے مانگ لینا، آج آپ کو میں خوش دیکھ رہی ہوں یا رسول اللہ کیا کچھ مانگوں؟ تو فرماتے ہیں مانگ، کیا مانگتی ہے؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اے عائشہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ ماں کا مقام دیکھو اور ماں کی عقل شریفہ دیکھیں، فرماتی ہے میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ ایمان و ایقان تھا کہ رسول اللہ کی دعا قبول ہو کے رہے گی، تبھی تو فرمایا دعا فرما دیجیے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی یا اللہ عائشہ کو دونوں جہان کی رحمتیں عطا فرما دے، اور یہ دعا فرمائی، سرکار اپنے حجرے پاک کی طرف کو تشریف لے جانے لگے۔ اب سننے والی بات ہے مسلمانوں، جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ 1000 مرتبہ کون درود پڑھتا ہے، 100 مرتبہ کون درود پڑھتا ہے، آپ دیکھیں کہ میں بتانے کیا جا رہا ہوں۔ جب سرکار آگے کو بڑھے تو دوبارہ دامن پکڑ لیا عائشہ نے اور پھر عرض کی یا رسول اللہ دوبارہ دعا فرما دیجئے۔ حضور نے پھر دعا فرمائی اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دے، اور یہ دعا فرما کے حضور سرور عالم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تو خوش ہو گئی؟ فرماتی ہیں یا رسول اللہ مجھے دونوں جہان کی خوشی مل گئی، میں بہت خوش ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر تجھے میری اس دعا سے خوشی ہوئی ہے اور تو اس بارے میں خوش ہوئی ہے کہ میں نے تیرے لیے 2 مرتبہ دعا فرمائی ہے تو سن لے اور میری بات نوٹ کر لے، جو دعا میں نے تیرے لیے 2 مرتبہ فرمائی ہے، اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم یہی دعا میں اپنے امتی کے لیے روزانہ 70 مرتبہ کرتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ ہم 100 مرتبہ درود کہاں پڑھ رہے ہیں؟ 70 مرتبہ۔ نبی کونین سرور کونین جو عاصیوں کے لیے پاپیوں کے لیے روزانہ 70 مرتبہ ہاتھ مقدس اٹھا کے دعا فرمائے مغفرت کی، اللہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، عاصیوں کی مغفرت ضرور ہوگی، بس امید بھروسہ چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ درود شریف کے مقام کے تعلق سے میں نے عرض کی کہ درود شریف 100 مرتبہ نہیں لاتعداد مرتبہ پڑھا کریں آپ، تبھی حضور کا قرب، حضور کی محبت زیادہ حاصل۔ جھوم جھوم کے پڑھیے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ بڑا نورانی منظر ہے، حضرت کی جلوہ گری ہے۔ سہیل ملت حضرت علامہ سہیل رضا صاحب قادری تشریف فرما ہے اور رسول اللہ کی نورانی بعرفانی
रूहानियत भी जो है जलसे में जलवाबार है। वो अलग बात है कि हम अपनी माथों की आंखों से निगाहों से नहीं देख रहे हैं, मगर सरकार हर उस जो है मकाम पर, हर उस जलसे में, हर उस जगह पर तशरीफ़ फरमा है जहाँ उनका जिक्र खैर हो। अनकरीब वो सात पुरकैफ वो लम्हात मुबारका करीब आने वाली है जब हमारे और आपके मोहसिन अजीम, मोहसिन मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा सगीरुद्दीन साहिब किबला मदीना शरीफ में हाजिर होकर हम गुनहगारों के लिए दुआए खैर फरमाएं। जैसा कि नकीब साहब ने ऐलान फरमाया था अभी, आली जनाब मोहम्मद अरमान खान साहब ये टूर ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं और तहदीस नेमत के बतौर आपकी बारगाह में मैं ये मुझे जाफिज़ा सुना दूँ। इसमें कोई गुरूर व तकब्बुर नहीं है, ना कोई मैं अपनी बात बयान कर रहा हूँ, बस तहदीस नेमत के तौर पे उलमा की मौजूदगी में ये बयान कर दूँ कि सबसे पहले 2015 में मैं मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ था। उसके बाद से लेके आज तक कोई साल ऐसी खाली नहीं गई जो मैं 2-3 मरतबा हाजिर न हुआ। तकरीबन आप लोगों की दुआ से 100 से ज़ायद उम्रे मैंने किए और हज़रत की बारगाह में हाजिर होकर यह अरीज़ा पेश किया कि हज़रत भी हमारे टूर के साथ तशरीफ़ ले जाए। हज़रत ने कबूल फरमाया और ये लम्हा और ये बात मानी कि हज़रत हमारे टूर के साथ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। दुआ हज़रत की और हमारी यही है कि अल्लाह आप सबको, आपकी नस्लों को बार बार मदीने पाक का दीदार करे। हर बार 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 आपको गुंबद खजरा मक्का मुअज़्ज़मा की पुरकैफ बहारों में आपको लेटने बैठने की तौफीक अता फरमाए। इन उलमाए किराम के तुफ़ैल अल्लाह बार बार गुंबद खजरा से हमारे आँखों को सुरूर अता फरमाए। अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आइए मचल के सुभान अल्लाह कहिए। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मदीना जिसमें आप तशरीफ़ फरमा है। बच्चों थोड़ा देर के लिए रुक जाओ या सो जाओ, पीछे बैठ जाओ। वो मदीना जिसके लिए हजारों नहीं लाखों जितने भी सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान हैं सबके दिलों में मदीना शरीफ की तड़प मौजूद है। वही एक शहर ऐसा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुजुर्गी, अजमत, शर्फ, कद्र अता फरमाकर उसका नाम ताबा या तैबा रखा है। हदीस शरीफ में है, मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं जितने भी शहर हैं दुनिया में किसी का नाम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोहे महफूज पे अपने दस्ते मुबारक से नहीं लिखा सिवाय मदीना पाक। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने इसकी वजाहत फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोहे महफूज पे मदीना मुनव्वरा का नाम ताबा लिखा हुआ, यानी बुजुर्गी अजमत वाला शहर। वो शहर जिसमें जाने के बाद दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और आशिक रसूल ये समझता है कि मैं हिंदुस्तान से आ तो गया हूँ लेकिन मेरा वीजा पूरी जिंदगी के लिए यहीं लग जाए। हर आशिक रसूल ये समझता है मैं हिंदुस्तान से आ तो गया हूँ मगर अब मुझे जाना नसीब नहीं हो, जाना नसीब हिंदुस्तान नहीं हो, मेरा वीजा बढ़ जाए मैं यहीं पड़ रहा हूँ। ये तड़प होती है मुसलमानों की और आशिक रसूल की। मदीना मुनव्वरा के ताल्लुक से अहादीस तैयबात जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, उलमाए इस्लाम की ज़बानी सुनेंगे तो ये हदीस भी नजर आएगी। हुजूर इरशाद फरमाते हैं तुम में से जिससे हो सके मदीने में आके मरे, जो मदीने में आके मरेगा मैं उसकी शफाअत का ज़ामिन हूं। तुम में से जिससे हो सके मदीने में आके मरे, मदीने में आके जो मरेगा मैं उसकी शफाअत का ज़ामिन हूं। काबा मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, ये दो शहर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ऐसे मकबूल हैं, ऐसे मकबूल हैं कि जो एक बार गया बार बार जाने की तमन्ना करता है और आने की तमन्ना उसके दिल में होती है। मदीना शहर मोतमरीन को, हुज्जाज इकराम को दीदार उसका नसीब होता है। ये उनकी निगाह करम है, ये उनका फैज़ है। जिसको चाहे बुलाएं, जिसको चाहे न बुलाएं। हमने देखा, लोगों ने देखा कि अरबपति खरबपति लोग रह गए
और वो लोग पहुंच गए जिनको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं। करोड़पति अपने पैसों में उलझ गए, लेकिन वो लोग पहुंच गए जिनको 1 टाइम का खाना नसीब नहीं था। क्यों? वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो होश हो कोई आह करे दिल से। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो होश हो कोई आह करे दिल से। पहुंचने वाले पहुंचते हैं, मगर तड़प, अकीदत, ईमान, नियत, जब ये सब कुछ होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज उनका वादा है, ये वादा है मुस्तफा का कि तुम मुझे याद करके तो देखो, तुम मेरा जिक्र करके तो देखो, तुम दुरूद व सलाम पढ़ के तो देखो, दुनिया में भी और महशर में भी मैं तुम्हें ऐसे तलाश लूंगा जैसे माँ खोए हुए बेटे को तलाश। तुम याद करके तो देखो, मान के तो देखो, दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करके तो देखो। उनका वादा रहा है, जब वो सलमान फारसी को नहीं भूले, जब वो गुनाहगारों को नहीं भूले हैं, तो इंशाअल्लाह वो ये भी नहीं भूलेंगे कि दुरूद व सलाम पढ़ने वाला मेरा सच्चा पक्का उम्मती है। और जो लोग ये सोचे बैठे हैं कि उम्रे का टिकट 75,000 का है कि 80,000 का है कि 1 लाख का है, ये उनकी सोच सही नहीं है। उम्रे का टिकट 80,000 का नहीं है, उम्रे का टिकट उनकी मोहब्बत है, उम्रे का टिकट उनकी जो है बारगाह में खिराज अकीदत है, उम्रे का टिकट उनकी बारगाह में दुरूद व सलाम। वरना मुसलमानों बताइए, हजरत ने देखा है उलमाए इस्लाम जो गए हैं उम्रा करने या काबा शरीफ में जो हाजिर हुए हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा 2 मिनट बस। क्या आपने नहीं देखा अबू जहल की कोठी अगर देखी हो हुज्जाज इकराम ने तो वो तसव्वुर करें, वहीं मरवा पहाड़ी के सामने अबू जहल की कोठी है, वही उसका मकान था, और आप देखें तसव्वुर करें कि उसकी कोठी जो है वही उसका मकान है, और सरवरे आलम का मकान अबू जहल के मकान से ऊंचा था, ऊपर है आज भी। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुने। सरवरे आलम का मकान अबू जहल के मकान से ऊपर आज भी है, कल भी था, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत तक रहेगा। क्या आपने तसव्वुर नहीं किया कि रसूल हाशमी जब नमाज के लिए तशरीफ लाते थे तो दिन में कम से कम अबू जहल 70 मरतबा चेहरा देखता होगा? क्या उसको कलमा नसीब हुआ? क्या उसको हज नसीब हुआ? क्या उसको उम्रा नसीब हुआ? अबू जहल 70 मरतबा देखने के बाद भी महरूम रहा, और सुहेब रूमी ने रूम में बैठ के कलमा पढ़ा, उवैस करनी ने कर्न में बैठ के कलमा पढ़ा, दूसरे साहबा ने दूसरे शहरों में बैठ के कलमा पढ़ा। क्यों? जिसके दिल में वो मोहब्बत डाल दे, फिर पैसा और कोठी काम नहीं आते हैं, दुरूद व सलाम काम आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पैसा हो तब आप उम्रे को जाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए हज पे पैसा होना जरूरी है, नहीं, पैसा कुछ भी ना हो, जब वो असबाब बनाने पे आते हैं तो ये कहने पे इंसान मजबूर हो जाते हैं कि अबू जहल बड़ा बदबख्त था, मैं खाने में था, महरूम रहा, घर बैठे वैसे करनी ने इश्क़ नबी का जाम किया। जहां महबूब अजीम शान वाला है, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान भी तो बहुत बुलंद है। जो खालिक कुद्स, जो मालिक कुद्स, जिसने हमें और आपको पैदा किया है, उसकी शान करीमी आप देखें, उसकी बारगाह से भी कोई महरूम नहीं है। बस आपको करना यही है कि दुआ दिल से मांगनी है, फिर आप देखिए कबूल कैसे होती है। तो पैसा कुछ नहीं है, दौलत कुछ चीज नहीं है। ये हमारे अरमान भाई जब इनको मैं ले गया पिछली साल 2022-23 में, उम्रे के पैसे जमा करने से पहले भी और बाद में भी इतनी पूंजी नहीं थी कि आके जाके वापस आ सके, मगर वीजा लगा हुआ, उम्रे करे 4-5 वहां जाके। क्यों? ये रसूलुल्लाह की नजरे इनायत, ये रसूलुल्लाह का करम था। हम भी कुछ नहीं है, हमारी भी 5-6 हज़ार रुपए तनख्वाह है मदरसे मस्जिदों में। पूरी दुनिया का आप डिपार्टमेंट खंगालें, तहकीक करें, सर्च करें, तो जितनी तनख्वाहें कम मौलवियों की और हाफिजों की हैं किसी की नहीं, और जितनी ड्यूटी इन नफूसे कुदसिया की है किसी की नहीं। मगर क्या महरूम है किसी चीज से? क्या किसी से कम खाते पीते हैं, किसी से बेकार पहनते उनते हैं? नहीं।
अल्लाह ने इरशाद फरमाया है तुम दीन की खिदमत के लिए कमर कस लो, मैं असबाब गैब से पैदा फरमा दूंगा, मैं असबाब गैब से मुहैया फरमा दूंगा, तुम दीन के खादिम बन जाओ, मैं तुम्हें दुनिया का इमाम बनाऊंगा। जो खिदमत गुजार हैं उलमाए इस्लाम, कारी इज़ाम, आपने देखा है और आप देख रहे हैं अपनी माथे की आंखों से कि अल्लाह ने उनको नवाजा है, और उन्हीं की तुफैल हम जैसे गुनहगारों को अल्लाह ने नवाज दिया है। आप देख लीजिए, उसकी एक जिंदा मिसाल, आखिरी बात है, लॉकडाउन लगा हमारे इलाके में, लॉकडाउन लगा था पूरी दुनिया में, किसी मस्जिद में नमाजें बंद हुई नहीं हुई ना, पढ़ने वाले इमाम और मुअज्जिन थे, वो अलग बात है, 3-3 लोगों की जो परमिशन थी, लेकिन करम, बालाए करम देखें, लॉकडाउन लगे कुछ भी हो, अल्लाह इन खादिमुल इस्लाम को अपनी बरकतों से, अपनी मस्जिदों से महरूम नहीं करता है? ये तो जिंदा सबूत है ना, इनको महरूम नहीं करता कि आप बरकतें लेते रहो, क्योंकि आप दीन के खादिम हैं, आप दीन के पहरेदार हैं, आप दीन के सिपाही हैं, आप दीन को चलाने वाले, आप दीन को फैलाने वाले हैं। जो जितना अल्लाह के दीन में पुख्तगी इख्तियार करेगा, ताईद खुदाबंदी उसी के साथ है। तो मैं अर्ज कर रहा था मदीना शरीफ का, आगे बताऊं, सुने। और फरमाते नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, काबा मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, दोनों मुकद्दस मकामात हैं। काबा हमारा किबला है, जितने भी लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं समझता हूँ सब नमाजी हैं अल्लाह के फजल से, और नमाज पढ़ने वाले हैं। अल्लाह इनकी नमाज की बरकतों से हमें भी नमाजी बना दे। आपने देखा है, हमने नमाजें पढ़ी हैं, नियतें की हैं, नियत में एक लफ्ज आता है, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, ये नियत करते हैं। ये जबान से कहना मुस्तहब है, अफजल है, कोई ना कहे तब भी चल जाएगा, लेकिन आप गौर करें, जब हजरत लौट के आ जाएं काबा शरीफ से, तब इनसे पूछना क्या यही नियत आपकी काबा शरीफ में भी थी? तो ये आपको बताएंगे कि पूरी जिंदगी मैंने नियत ये की थी, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, लेकिन जब मैं काबे में पहुंचा था तो मेरी नियत ये थी, मैं काबा शरीफ के सामने है, तो मेरी नियत ये थी, मैं काबा शरीफ के सामने, काबा मेरे सामने है। अभी हम अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ रहे हैं, मस्जिद की मेहराब देख रहे हैं, इमाम साहब की पीठ देख रहे हैं, लेकिन जब काबा शरीफ में नमाज पढ़ेंगे तो काबे को देखेंगे। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बरकतें, रहमतें, नेकियां अता फरमाता है लोगों को, तो निगाह डालने वालों को भी एक निगाह पर 70 नेकियां देता है काबे की ज़ियारत पे। एक निगाह आपने डाली, 70 नेकियां, और काबे की हर नेकी 1 लाख के बराबर है। ये बड़ी बरकत नहीं है? कौन है हम में और आप में ऐसा जो ये कहे कि मेरा 1 लाख रुपए जो है उम्रे के लिए बहुत है? बताइए, कोई नहीं है ऐसा? है कोई ऐसा कि हमने 1 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में काबा शरीफ की बोली लगा दी, मदीना तैयबा की बोली लगा दी? क्या दुनिया की दौलतें एक तरफ और काबे का दीदार एक तरफ नहीं है मुसलमानों? बोलिए, काबे का दीदार किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता सिवाय ईमान की दौलत से। आप तैयारी रखें, तैयारी रखें, नियत रखें, पता नहीं बुलावा किस दिन आ जाए। उम्मीद रखें, पता नहीं बुलावा किस दिन आ जाए। आप तो माशाअल्लाह टोपी लगाए बैठे हो, चेहरों पे मैं दाढ़ियां देख रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा, इजाजत हो तो आखिरी बात आप सुन के मचल जाएंगे, ईमान ताजा हो जाएगा। हम तो मुसलमान हैं माशाअल्लाह, अल्लाह हमें इस्लाम पे इस्तिकामत बख्शे। आप देखें, ये तो मुसलमानों की बात है कि बुलावा कब आ जाए, ये तो मोमिनों की बात है कि बुलावा कब आ जाए। उलमा इस्लाम मौजूद हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो या इनकी ज़बानी सुना हो तो मैं आपको बताऊं, आप गौर करें। अल्लामा शफी ओकाड़वी के ख़ानदान में एक बुजुर्ग गुजरे, उनके ताल्लुक से आता है कि उनके दयारो अमसार में पाकिस्तान में, गौर से सुनिएगा, और मैं समझता हूँ कोई खामोश नहीं बैठेगा बगैर सुभान अल्लाह, बस 2 मिनट की बातें सुन लीजिए। सीरतुन नबी के जलसे होते थे उनके दयारो अमसार में, दूर दूर
मगर उनका जो इलाका था उसमें जो है सीरतुन नबी के जलसे बिल्कुल नहीं होते थे। क्यों? वजह क्या थी? कादियानियों का हल्का था, गैर मुकल्लिद कादियानी चकड़ालवी बहुत से लोग थे वहां, तो सीरतुन नबी का कोई जलसे वहां करते नहीं थे उनके डर से। लोगों ने मशवरा करके, सुन्नी सैयद अकीदा लोगों ने हजरत की बारगाह में अरीज़ा पेश किया खतो किताबत के जरिए कि हजरत हम ये चाहते हैं कि आप तशरीफ ले आएं और हमारे यहाँ सीरत रसूल का जलसा करें। हजरत ने दावत कबूल फरमाई और उस इलाके में तशरीफ ले गए जहाँ सीरतुन नबी का जलसा होना था। तांगे से आप तशरीफ ले गए, जब उस इलाके में उतरे तो लोग भागते भागते आपकी बारगाह में आए और अर्ज की, हुजूर आप वापस चले जाएं। कादियानियों ने ये चैलेंज किया है और ये धमकी दी है कि अगर सीरतुन नबी का जलसा हुआ तो बहुत मारेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे किसी को। हजरत ने फरमाया, बात अगर मेरी होती तो मैं वापस चला जाता, बात अगर आपकी होती तो वापस चला जाता, बात नामूसे रिसालत की आ गई है, अब तो जलसा जरूर होगा, अब वापस नहीं जाऊंगा। अगर ये चैलेंज है तो अब वापस नहीं जाना है, जलसा जरूर होगा। हजरत ने फरमाया, तुम कुछ मत करो, ये बताओ यहाँ कोई पहलवान है? आसपास में कोई पहलवान रहता है, बॉडी बिल्डर? तो लोगों ने कहा, हुजूर हाँ, जंगलों में एक नूरा पहलवान रहता है। क्या नाम था? और डाकू था, बहुत बड़ा पहलवान भी था। डाकू, आप जहन में रखें कि मैंने आपको मुसलमान कहा था, आप मुसलमान आप हैं, अल्लाह चाहेगा तो रहेंगे, अल्लाह रखे हमें सभी मुसलमान। नूरा डाकू की बारगाह में शफी उकाड़वी के शहजादे खानदान के आलिम दीन पहुंचे और कहा कि लोगों ने ये कहा है कि जलसा नहीं होगा, क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? तो डाकू ने कहा था कि हुजूर डाकू जरूर हूं, नामूसे रिसालत का गद्दार नहीं हूं। हुजूर डाकू जरूर हूं, शराबी जरूर हूं, नामूसे रिसालत का गद्दार नहीं हूं, चलिए कहां चलना है। और हाथ में एक बहुत बड़ी लाठी ली और साथ में आ गए और उस ग्राउंड में जलसा हुआ। कई घंटे हजरत की तकरीर हुई और डाकू साहेब खड़े रहे लठ लिए। रिवायतों में लिखा हुआ है कि पूरा जलसा जब खत्म हो गया अपने जंगल में चले गए, वही डाका चले सरका खेजी शराब नोशी चले गए। और जैसे ही रात को सोए, सुने सुने, जैसे ही रात को सोए, इधर सोए और उधर जो है किस्मत बेदार हो गई। इधर सोए और उधर किस्मत बेदार हो गई। मदीने के ताजदार शहनशाह कौनैन आमना के लाल महबूब रब्बे जुलजलाल ख्वाब में तशरीफ ले आए, चेहरे पे हाथ फेरा और इरशाद फरमाया, नूरा डाकू तूने नामू से रिसालत पे पहरा दिया है, जा, मैंने तुझे साहिब ईमान भी कर दिया, साहिब दीदार भी कर दिया। हुजूर ने एक ही रात में नवाज दिया, अपना दीदार भी कराया, ईमान की पुख्तगी भी अता कर दी, साहिब ईमान भी बना दिया। वहां से आए हजरत की बारगाह में, चेहरे पे दाढ़ी, कुछ दिनों के बाद सर पे इमामा। और जब हजरत की बारगाह में पहुंचे तो हजरत ने पहचान नहीं पाया और फरमाया, आप कौन हैं? तो अर्ज की, हुजूर मैं वही डाकू नूरा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपने देखा कि जब मेरे नबी सरवरे कौनैन अपनी जात पे पहरा देने वालों को, अपनी जात से मोहब्बत करने वालों को जब डाकुओं को नवाज सकते हैं तो मस्जिद इलाही के मुक्तदियों को क्यों नहीं नवाज सकते हैं? हमें और आपको क्यों नहीं नवाज सकते? जब शराब नोशी करने वालों को नवाज सकते हैं, ये उनका करम वाला है, करम है, हम उन्हें पुकारें तो उनसे मोहब्बत तो करें। जब उनकी रहमत जोश पे आएगी तो आप देखेंगे हमारे नबी हैं, हम उनके उम्मत हैं। दुरूद पाक पढ़िए झूम के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह। आखिरी बात यह है, कल हजरत की रवानगी है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुम्मा शाह रसूल अल्लाह। 8 बजे हजरत की फ़्लाइट है और 20 दिन का हजरत का टूर है। 20 दिन के बाद हजरत खैर व आफियत के साथ वापस तशरीफ़ लाएंगे और हमें उम्मीद है हजरत की बारगाह से, के बारगाह मुस्तफ़ा में
ہم آسیوں کا بھی درود و سلام اور دوسری چیزیں تو پیش کریں گے ہی۔ اصل میں ہم جب لوگوں کو ودا کرتے ہیں نا تو ایک چیز بھول جاتے ہیں۔ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میرا سلام کہہ دیجیے گا حضور سے، میرا سلام کہہ دیجیے گا، میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ 90% لوگوں کی یہ بولی ہوتی ہے۔ یہ بھی بولی بہت اچھی ہے۔ یہ بولی اس معنی کر اچھی ہے کہ حضرت آپ کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے اور حضور نے اگر پوری زندگی ایک مرتبہ بھی وعلیکم السلام کہہ دیا تو نجات آپ کی بھی ہے، اولاد کی بھی ہے۔ مگر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ یہ بھی تو کہیے کہ حضور سلام تو ہمارا پیش ہے ہی، سلام تو آپ پیش کریں گے ہی، خاص طور سے یہ بھی تو دعا فرما دیجئے کہ ہم بھی جا کے دوسروں کا سلام پیش کریں۔ یہ بھی کہیے حضور سے کہ یہ بھی تو دعا کیجئے کہ ہم بھی دوسروں کا سلام جا کے پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حضرت دھیان رکھیں گے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ بار بار دیدار مدینہ سے مشرف فرمائے، بار بار آپ کی نسلوں کو مکہ معظمہ دکھائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے میں کوئی عجلت کی تحت غلطی ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان کو فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔